Good morning, everyone. It's nice to see you after only one day is good for your festival, that is Deepavali. So, best wishes for the festival of Diwali and upcoming festivals too. Good morning, everyone. Let us discuss something of an academy. I welcome you all to An Academy. Crack all UPSC Civil Service optionals with India's largest learning platform. Get the subscription of it. So once you get the subscription of it, you will get daily live classes. And once you get the daily live classes, you see in these daily live classes, you'll be chatting with the educators, you'll be engaged with discussions, asking doubts about the educators, and many more things. Structure courses, you see all the courses are well structured, and there are more than 15,000 plus courses. So all courses are well structured. Live test and quiz are there. You see live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learner, so that before giving the exams, they can evaluate themselves. Unlimited accessibilities. Unlimited accessibility means that if you fail to get daily live classes, so you see a recorded class is available and you can listen it, download it anytime, anywhere. You see this, you can download this Unacademic app, learning app through Google Play. About me, I have completed my graduation from Calcutta University in science subjects. I am acting as a mentor for UPSC Civil Service for last 11 years, more than 11 years in public administration, polity, governance, and few more subjects. I have appeared for UPSC Civil Service interview twice and have served in many reputed IS coaching at Delhi and many more states. Under my guidance, you see many aspirants have cracked UPSC Civil Service as well as many state level exams too. Along with me, there are top 100 educators who will be guiding you. Along with me, there are top 100 educators who will be guiding, and they will make your journey simple and simpler so that you crack UPSC exams and achieve your target. So you can see the example in the slides. As you all know that there are more than 15,000 plus courses. I have said earlier also. So in this 15,000 plus courses, you see polity, governance, and international relations. That is what I will be looking for. Okay, geography, science and technology, NCRT, history, optional course, environment. So there are many courses available, and you can see this is the example of few courses. This is the example of few courses which you will be getting. As you all know that these courses cannot be completed in 1 month, 3 months, 6 months. So it's better that you get the subscription of 12 months. And Unacademy provides two types of courses, that is plus courses and iconic courses. So in this plus courses, these all are the fees structure of plus courses. And in these plus courses, you see for 12 months, the fees is 49,500. But if you apply my promo code, that is SDMD or MDYT, any of the code if you apply, you will get 10% discount instantly. 10% आपको discount तुरंत मिल जाएगा. And you have to pay 44,550. Similarly, for 24 months, you see it's 72,000. But if you apply my promo code again, SDMD or MDYT, you will get 10% discount and you have to pay 64,800. And for 36 months, it is 90,000. And if you apply my promo code 10% discount, you will be getting. So it's MDYT or SDMD. Any code you apply, you will get 10% discount and you see 81,000 you have to pay. So that is about plus course. Now we come to iconic courses. When we talk about iconic courses, you see these are the extra benefit which you are getting in iconic courses. And for 12 months, you see the fees is 69,500. But if you apply again my promo code SDMD or MDYT,
you'll get instantly 10% discount. And with this 10%, you have to pay 62,550. Then again, you see, for 24 months, the fees is 1,07,000. But if you apply my promo code SDMD or MDYT, you will get 10% discount and you have to pay 96,300. Then you see about 36 months. When we say about 36 months, you see you have to pay 1,41,000. But if you apply my promo code now, you will get 1,26,900. Okay, so this is all about Unacademy, and now Unacademy is growing very fast. So it's better that you get the subscription as soon as possible. Otherwise, anytime the price can hike. Now, see, today we'll be discussing about the. Please wait a minute. I'm sorry. Yes. So already we have discussed about all this an academy and each things. So today we'll be discussing about here. You can write the promo code, that is SDMD, or slash you can give. I'm very sorry to this. You see, you can use this or you can use MDYT. Both promo code is applicable. You can use it and you'll get the benefit of 10% anytime. Whenever you use, you just don't forget to mention the code. So now, as today we'll be discussing about union and territory. And this is the first part of our Constitution of India. Yes, this is the first part of our Constitution of India. यानी यहाँ पे हम लोग यूनियन और टेरिटरी की बात करेंगे एंड दिस इज मेंशन इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 1 to 4. Okay, so you see this is what it is mentioned. So now let us talk about the background of union and its territory. हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें. India is what we say, India is a federal state. India is a federal state or India is a federation. But interesting thing is this, that federation word is nowhere mentioned in our constitution. सबसे अच्छी बात यह है कि संघवाद जो है हमारे संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया. It is nowhere mentioned about federation. Yes, it is nowhere mentioned about federation. And still we say India is a federal state. Now see, according to, now let us discuss some background of this. According to one's view, in spite of the fact that Indian constitution established federal state, it is indeed difficult to put Indian state into a category of true federation. इंडियन कैटेगरी को ट्रू फेडरेशंस में आप रख नहीं सकते हैं. Remember this. Yes, you cannot keep Indian federation into category as like that of America. क्यों? क्योंकि अमेरिका में फेडरेशंस का, फेडरल का मतलब होता है स्टेट और सेंटर, दैट इज यूनियन एंड स्टेट. इन दोनों के अपने, इफ यू सी, बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन.
And state also, there are 50 states and each state have their own constitution also. Each state have their own constitution. And the constitution of one state varies from other. यानी एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होगा. एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे. बट हम इसको इंडिया को ट्रू फेडरेशन क्यों नहीं कहते? बिकॉज वी डोंट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी स्टेट. वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. यू सी वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. और जब हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टेट, यूनियन एंड स्टेट both will abide according to the constitution. बोथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे. और अमेरिका में दे हैव डुअल सिटीजनशिप. इसका मतलब कि अमेरिका में जो 50 स्टेट्स है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने अकॉर्डिंग सिटीजनशिप रखेंगे. बट दे सेज दैट एज अ कंट्री आई एम द सिटीजन ऑफ अमेरिका. एंड where do they stay? They stay in this, so they are also the citizen of that part. But in India, Indian constitution prohibits dual citizen, so we have single citizen. We have single citizenship. हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है. तो दिस ऑल मतलब ये सारे क्राइटेरियाज, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. जैसे अगर ट्रू फेडरेशन कहोगे तो अमेरिका प्योरली बिलीव्स इन सेपरेशन ऑफ पावर. Purely believes in separation of power. But in India, we say we believes in distribution of power or division of power. We believe distribution of power or division of power. यानी हमारे यहां पावर शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का बंटवारा किया गया. और किसमें? तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट. और हमारे यहां स्टेट लिस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट. जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है. बट अमेरिका में सब्जेक्ट्स जो हैं वन स्टेट टू अदर स्टेट वेरी करेगा. One state to another state, it will vary. It will vary. Okay. And so in this regard, there are many more things. So in this regard, we can say that Indian constitution is not true federal as like that of America, Australia, and so on. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है एज जैसे अमेरिका में कहें या फिर और कहीं की बात करें. Yes, Indian constitution is not true federal as like that of America or other states. We do have federal. अगर पूछा जाए कि इंडिया, तो we have to say, we have to justify the point that yes, India is a federal state, but not true federal as like that of America or other states like Australia and so on.
तो इंडिया कुछ कुछ क्राइटेरिया जो है वो फेडरल स्टेट्स की अडॉप्ट करती है, जो हम लोग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विल ट्राई टू सी, जो हम लोगों ने पहले देख लिया है। ओके, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सो विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया देयर वाज एक्चुअली टू इंडियंस। अब ये भी एक नया बवाल है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट कि प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग दो इंडिया जो थी वो दो इंडियन में डिवाइडेड था। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडियन, और ये टू इंडियन क्या था, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था नेटिव इंडियंस। ये भी देख लेते हैं हम लोग। यू सी, वन वाज ब्रिटिश इंडिया and the another was native Indians, native India. The latter was ruled by Rajas, Maharajas, Nawab and Nizams. यानी नेटिव इंडिया जो था, नेटिव इंडियाज की अगर हम बात करते हैं तो दे वर रूल्ड बाय, ये जो रूल किए जा रहे थे नेटिव इंडियंस, these native Indians were ruled by Raja, Maharaja, Nawabs and other Nizams. And British India जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, ये चीज को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स अपने पास लेके चलते थे। सो दैट इज व्हाई द इंडियन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। और देखिए, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुई, there was about 600 princely state, that is approximately 600 princely state. we say 600 princely state कैसे था? So it is about means there was 565 princely states, large and small, यानी छोटा या बड़ा सब मिला के we were having 565. While the British has 11 provinces जो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में थे. It is not 11, it's 11. That was purely in the control of Britishers. And 4 chief commissionerate province under their control. ये चीफ कमिश्नरेट में वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था, जो आज हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वो वही वहां पे रहा करते थे. ओके, सो यू सी how India slowly and smoothly we come to know about its union and how does the territories being defined. क्योंकि भारत जो था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और नेटिव इंडियंस. और जब ब्रिटिश इंडिया और नेटिव इंडियंस की बात करते हैं तो यू सी इन दोनों पार्ट को वो अच्छी तरह से मॉडिफाई किया गया. ओके, एंड दैट इज द रीजन दैट यू सी ब्रिटिशर्स हैव were more powerful and it takes hell lot of time to remove the Britishers. Shortly after independence, the princely states were integrated within the Indian Union and become a part of full-fledged India. A couple of states may have differences, that is, deherted means differences, like Hyderabad, Jammu and Kashmir, Junagadh. Few more states are there, but soon they too came to be absorbed in a larger India. मतलब sooner or later हमारे जो उस वक्त जो होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उन्हें किसी भी तरह से बाय हुक और बाय कुक उसे भारत का अंग बना लिए. Though the exact nature of Jammu and Kashmir's status remains to be defined. क्यों डिफाइन? क्योंकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है, दैट वाज डिफरेंट. जम्मू एंड कश्मीर एक खरीदा हुआ राज्य है, पंजाब के राजा से वो खरीदा हुआ राज्य था. स्लोली स्मूथली राजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे, जिनके थ्रू हमने ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन किया और उन्होंने इसको दिया, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है. और तब हमने जम्मू एंड कश्मीर को अपने स्टेटस में और डिफाइन किया. और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली 2000, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था वो 370 से रिलेटेड था. आर्टिकल से रिलेटेड था. और इसे टेम्पररी रखा गया था. बाद में कुछ प्राइम मिनिस्टर आए, उसे
परमानेंट किए। बट अभी रिसेंटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के 370 आर्टिकल को शट डाउन कर दिया। 370 आर्टिकल को बंद कर दिया, यानी उसके क्लॉज को रीडिफाइन किया उन्होंने। एंड नाउ इट हैज बिकम फुल फ्लेज्ड इंडियन पार्ट एंड इट हैज बीन पुट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसी तरह से हैदराबाद के निजाम्स की भी पोजीशन कुछ ऐसी थी, जूनागढ़ के जो राजा थे उनकी भी। सो दैट ऑल विल ट्राई टू सी, हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या था। अब देखिए, सो देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ एनी नेटिव स्टेट remaining free or dictating terms to become a part of federation। तो अब हम जब हम फेडरेशंस के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन, व्हेन आई एम सेइंग दैट इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन, तो ट्रू फेडरेशंस के क्या क्या कारण थे कि इंडिया ट्रू फेडरेशन नहीं बन सका, दैट इज ऑल्सो अ बिग इश्यू। क्योंकि अमेरिका में देखिए, जब अमेरिकन फेडरेशन चालू हुआ तो पहले उनके 13 स्टेट मिलकर उन्होंने फेडरेशन बनाया और धीरे धीरे उन्होंने सारे स्टेट्स को अमलगमेट किया। ठीक है, तो उनकी सिचुएशन और सरकमस्टेंस दूसरी थी। वहां स्टेट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि तुम मुझे होल्ड करो। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको इंटीग्रेट कर रही है, स्टेट को, कि हम आपको टुगेदर रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। सो इसीलिए देखिए यहां पे फेडरेशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज होल्डिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, ये दो कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए होल्डिंग टुगेदर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अमेरिका जो स्टेट थी, पहले स्टेट फॉर्म हुई और तब उन्होंने कंट्री को बताया कि ये हम लोग के म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये एक नेशन बना, कंट्री बना, कंट्री को हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देते कि वो हमारे सॉवरिटी को प्रोटेक्ट करे। तो उसको दैट इज कमिंग टुगेदर, यानी सेंटर, पहले स्टेट कम किए और तब उन्होंने सेंटर को ओरिजिन किया। बट हमारे यहां सरकम दिस इज ऑल्सो फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ये दोनों टाइप का फेडरेशन, और ये जो फेडरेशंस है, ये जो फेडरेशंस हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन, इसमें इंडिया में अगर एग्जांपल है तो आप जब किसी को टुगेदर करोगे ना एक साथ, तो आप देखिए बहुत स्टेट को आप स्पेशल प्रोविजन दोगे कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, यू डू बाय योरसेल्फ, आपको ये स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं। लाइक यू सी अंडर आर्टिकल 371 A2F, मतलब देयर आर ऑल टुगेदर 9-10 स्टेट्स। अब तो जम्मू कश्मीर हट गया तो 9 स्टेट्स हो गए, उनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, बट ऐसे केसेस होल्डिंग टुगेदर में नहीं होगा, क्योंकि स्टेट मिलकर बनाई, यहां सेंटर आपको प्रिविलेज दे रहा है कि आप अपना काम करें। और वहां पे जब ब्रिटिश कॉलोनी थी तो वहां पे 2 इंडियन 2 अमेरिकन नहीं थे कि उनको सेग्रीगेट किया जाएगा। बट हमारे कंडीशंस में, हमारे कंट्री में, जब व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरेशंस, तो हमारे अपने देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी नेटिव स्टेट रिमेनिंग फ्री, यानी जो टेरिटरी, जब डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी हो गई तो अब उस टेरिटरी के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया कि वो स्टेट फ्री होगा। और डिक्टेटिंग टर्म्स टू बिकम द पार्ट ऑफ फेडरेशंस। अब आप लोग सुनते होंगे कि सर, फिर आप लोग के दिमाग में, सर बहुत सारे स्टेट दे आर डिमांडिंग फॉर
स्पेशल स्टेटस, वो स्टेट से भी बाइफरकेट होना चाहते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स आर राइज्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म. ये सारा चीज भारत में अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म की वजह से. Okay, so now see, that we'll discuss later on. The very concept of federations in this circumstance is misleading. States like Hyderabad, Mysore, Travancore, Cochin totally lost their identity by becoming the part of a larger India. आप देखिए मैसूर त्रवणकोर, मतलब एक तरह से आप देखिए ना कि मद्रास एक बहुत बड़ी प्रोविंस थी, और जब कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ फेडरेशंस का लाना था तो हमें इन स्टेट्स को ऑब्वियसली कहना चाहिए कि तुम अपने हिसाब से, बट बिकॉज ऑफ द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया कि ये जितने राजा महाराजा थे हैदराबाद के गए, हैदराबाद के तो निजाम को उस दौर के टाइम में कहा जाता था कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. हैदराबाद के निजाम richest person in the world. और मैसूर, त्रमकोर, कोचिन, ये टोटली दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ लाल. जब ये भारत का अंग बन गए तो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया. यानी इंडिया ट्रू फेडरल नहीं है जी. इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल स्टेट. अब दिस इज ओनली द रीजंस. अब देखिए, दिस वाज द ओनली रीजंस दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन. और फेडरेशन वर्ड संविधान में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, इंटरप्रिटेशन जरूर मिल जाएगा. फेडरल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, यू विल नॉट गेट द वर्ड फेडरेशन. यस, इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली यू विल गेट इट. Yes, interpretations you will get definitely. Now, that's the provisions to which they were attached subsequently to reorganize. This is not T, it's R. Reorganized along the linguistic line is another story. यानी एक तो हैदराबाद, मतलब एक फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके वजह से खत्म हुआ. दूसरा जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ कि स्टेट ने डिमांड कर दिया कि द स्टेट शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस, स्टेट को स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के बेस पर दिया जाए, लिंग्विस्टिक बेस पे. यू सी, लिंग्विस्टिक बेसिस यू हैव टू प्रोवाइड द स्टेट. यानी स्टेट को अगर आप कोई दर्जा देना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड द स्टेट on the basis of language, that is linguistic. On the basis of linguistic. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडिया को फेडरेशंस के लिए रोकता है, बट ऐसा अमेरिका में नहीं. और ये अथॉरिटी सेंटर के पास है कि क्या लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को डिवाइड किया जाए, नहीं किया जाए. So that lies in the hand of center. फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है. State has a right to think about themselves. Then you see, it reveals the fact that under the scheme of our constitution, greater power is conferred upon the center. Yes. अब आप बताएं हमें कि भारत के संविधान में ये कहा गया है, ये फैक्ट सही है कि इंडिया में भारत के संविधान को दैट इज ग्रेटर पावर दिया गया सेंटर को. मतलब सेंटर्स, देयर इज द इंक्लाइनेशन ऑफ पावर टुवर्ड्स द सेंटर vis-a-vis स्टेट. vis-a-vis state, yani in comparison to state, does not means that the states are merely appanage of the center. यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो
मियरली एक छोटा सा बॉडी नहीं है गवर्न करने के लिए। ओके, वो एक छोटा सा बॉडी नहीं है कि स्टेट सेंटर हमेशा उसको गाइड करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी किसी मैटर में यू सी द सेंटर हैज मोर पावर, दैट इज व्हाई लाइक विल सी, हम लोग आगे चल के इसको समझ लेंगे। सेंटर के पास पावर रहने के बावजूद रहने सेंटर के पास यू सी सेंटर हैज द पावर, दैट इज व्हाई वी से सेंटर इज स्ट्रॉन्गर when it compared to the state. But it doesn't mean that state is only there to abide the center. No. Within the allotted sphere, to them, states are also supreme. Now, within the allotted spheres of them का मतलब क्या होता है? यानी अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि you see there are in America there is separation of power. But in India we have distribution or division of power. वी हैव डिवीजन ऑफ पावर। और जब हम इस डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो यू सी द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और आप देखिए कि जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट देयर आर ऑल टुगेदर 61 सब्जेक्ट, और स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट इन मेकिंग लॉज, their center cannot interfere, state center will only interfere under extraordinary circumstance. So that is why it says states are independent. So in this regard we can say somehow that India is a federal state. In this regard we can say that India is a federal state. Okay, and that is why it says कि केवल सेंटर ही सुप्रीम पावर, ऐसा नहीं है, स्टेट को भी राइट दिए गए कि अपने दायरे में रह के वो अच्छा काम करें। ओके, देन यू सी नाउ एज आई सेड, तो ये हमारा बैकग्राउंड है, दीज ऑल आर बैकग्राउंड दिस ऑल आर बैकग्राउंड कि यूनियन एंड टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया कैसे भारत में, और भारत फेडरल स्टेट क्यों नहीं है। यूनियन और टेरिटरी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि इंडिया ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ब्रिटिश इंडिया, नेटिव इंडिया। तो धीरे धीरे जब भारत आजाद हुई तो उसको एसिमुलेट करने में हमें टाइम लगा, एंड सिंस हमें एसिमुलेट करने में टाइम लगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेट फॉर्मेशन है फेडरल कंट्री का, जो अमेरिका के साथ हम कंपेयर करते हैं, ट्रू फेडरल नहीं हो सकता। उसके कारण भी मैंने द रीजन ऑल्सो आई हैव सेड टू यू ऑल। सो नाउ विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझेंगे कि as I said that in this article you see when we talk about union and territory, so in this article of union and territory it is mentioned under article 1 2 2a 3 and 4, केवल चार आर्टिकल है, that is 1 to 4 under part 1, और ये 1 to 4 इट इज ऑल्सो मेंशन इन शेड्यूल ऑल्सो। हम लोग ये डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस अभी as you all know that in federal we have already discussed about silent features. So you see now
आर्टिकल 1 हम लोग अभी केवल पढ़ेंगे इसको, इसके पीछे क्या है, आने वाला क्या है और प्रेजेंटली क्या चल रहा है, इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करेंगे. राइट नाउ वी विल ओनली गो थ्रू द आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल व्हिच इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज. ओके, which is written in the constitution as it is. तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, then I will try to define what is all. Now, Article 1, name and territory of union. बस इतना आप समझे कि आर्टिकल 1 जो है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करता है. आर्टिकल 2, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. ये एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे न्यू कंट्री. देखिए ये स्टेट कैपिटल है. जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में दो चीजें होती हैं, व्हेन यू यूज कैपिटल लेटर, कैपिटल एस, it means we are talking about country, and whenever we talk about small s, whenever we talk about small s, then you see it is talking about state like Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh, and so on. एंड सो ऑन. तो आप देखिए जब हम स्मॉल एस की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल एस, तो इससे रिलेटेड ये बात होगा. ओके, इससे रिलेटेड ये बात होगा. सो तो यहाँ पे ये न्यू स्टेट, जब ये स्टेट कैपिटल है तो यानी दूसरे कंट्री को, फॉरेन कंट्री को इंडियन टेरिटरी में कैसे इंक्लूड किया जाएगा उसके बारे में बात किया जा रहा है. ये उसके बारे में बात किया जा रहा है. आर्टिकल 2A ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया और इसे रिपील भी किया गया उसी टाइम, और इसी के जरिए 10 शेड्यूल भी लाया गया तो उसे भी रिपील किया गया. तो पहली बार 10 शेड्यूल यहीं पे दिखता है. फर्स्ट टाइम 10 शेड्यूल you can see here itself. Then you see we talk about Article 3. Article 3 talks about formation of new state, alteration of areas, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. यानी ये सारी चीजें जो हैं ये उस दौर की कर रही हैं. यानी कैसे स्टेट को बाइफरकेट किया जाए, कैसे स्टेट को डिवाइड किया जाए, इन सब चीजों. सो दिस इज, एंड देन यू सी आर्टिकल 4 टॉक्स अबाउट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3. यानी कोई भी चेंजेस आर्टिकल 2 में और 3 में हम करेंगे फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट and fourth schedule, you see the supplement, incidental and consequent matter. यानी ये जो आर्टिकल्स जो इसके अंदर लेंगे ये इंसिडेंटल होगा और ये सीक्वेंशियल होगा. यानी इट विल नॉट बी कंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 368. इसे आर्टिकल 368 में हम नहीं रखें क्योंकि आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल amendment. Constitutional amendment. ओके, सो इसलिए इसको भी हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी कम टू the explanations of the article, that is union and territory. Now we come to the explanations of the article union and territory. अब देखिए हमारा आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड द यूनियन, that is India,
दैट इज भारत. अब देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. दिस मीन्स इंडिया इज ए यूनियन comprising of states which are integral part of it, and the Indian Union is not destructible. Here state cannot break away from the union. यानी अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. स्मॉल स्टेट है. अब देखिए, यहां पे जब हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी. और हम यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं. बता रहे हैं आपको, यूनियन टेरिटरी की बात हम लोग किसी और आर्टिकल में, किसी और पार्ट में करेंगे. तो देखिए, यहां पे जब हम बात करते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो या तो आप इंडिया लिखिए या तो आप भारत लिखिए. व्हाई बोथ टर्म्स हैज बीन इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? दोनों टर्म क्यों इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? व्हाई द बोथ टर्म हैज बीन इंक्लूडेड? व्हाई बोथ टर्म क्यों इंक्लूड किया गया? या तो आप इंडिया रखिए या तो भारत रखिए. आने वाले समय में आप फिर हिंदुस्तान भी रख दीजिएगा, बहुत सारा चीज आ जाएगा ना. तो आप ये जान के रखिए कि दिस भारत वर्ड इज एन एंशिएंट वर्ड. अब आप लोग अपने से गुणागणित मत लगाइएगा कि राजा भरत थे, 10 राजाओं को हराया तो इसलिए उनका नाम भरत रखा. ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, ये कुछ बुक्स में लिख दिया, बट ओरिजिनल सोर्स अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन की डीडी बासु में, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसको. सो यू सी, भारत इज एन एंशिएंट नेम एंड इंडिया इज अ मॉडर्न नेम. ये मॉडर्न नेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आई तो इसका नाम बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया, इंडिया इंडिया इंडिया. बट हमारे अपने देश के लोग इसे भारत ही कहते हैं. इसलिए आप नोटिस कीजिएगा, तो जब भी देश में कोई गतिविधि, इफ एनी एग्रीमेंट ट्रीटी डन बाय द स्टेट, इट इज सेड भारत सरकार के द्वारा किया गया. But whenever we done it, we go abroad, we can't say that we are from Bharat. We have to say that we are from India, because India is more popular than considered to Bharat. और इंडियन ओशन के नाम से पहली बार देखिए हमारे नाम से बहुत सारी चीजों को रखा गया. इंडियन ओशन इंडिया से डिराइव होता है. अब देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, तो आर्टिकल 1 सेज दैट दिस मींस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कंप्राइजिंग ऑल दी स्टेट, जो भी स्टेट है. लाइक प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स. We have 28 states, and these states comprises to form union of state, and they are integral parts. So Indian Union is not destructible, यानी आप इंडिया को तोड़ नहीं सकते हैं. नेशन कैनॉट बी डिस्ट्रक्टेबल. आप देश को नहीं तोड़ सकते. डिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या हो गया? कोई स्टेट इंडिया, कोई स्टेट इंडिया का स्टेट है, वो सेपरेट कंट्री का दर्जा नहीं ले सकता है. इफ इट इज हैपन, देन इंडिया विल बी डिस्ट्रक्टेड. So the states which are the part of India should not be invisible.
दैट मीन्स इट शुड बी विजिबल इन द आईज, हमें वो दिखना चाहिए। इंडियन यूनियन की बात करें तो सो एंड हियर स्टेट कैनॉट ब्रेक अवे फ्रॉम यूनियन, इट मीन्स स्टेट जो है वो इंडियन यूनियन से कभी बाहर नहीं आ सकता। यस, इंडियन यूनियन से कभी बाहर नहीं आके कहे कि यस आई एम नाउ अ सेपरेट कंट्री, नहीं कर सकता। दिस दे कैनॉट डू, बट स्टेट कैन बी दिस here capital state, that means country cannot be disintegrated. So here you see state can be, state matlab this 29 state can be divided. That is why it is said India is an indestructible nation of destructible state. डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का मतलब है जैसे आप देखिए बिहार से झारखंड निकला, छत्तीसगढ़ फ्रॉम वेयर, मध्य प्रदेश, आप देखिए हरियाणा, पंजाब, पंजाब से हरियाणा निकला। तो इस तरह से देयर आर मेनी स्टेट्स। अभी रिसेंटली आपके पास बेस्ट एग्जांपल है तेलंगाना केम आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और ये सब स्टेट रीजनलिज्म्स के वजह से बाहर आए हैं। रीजनलिज्म, तो यू सी व्हेन आई सी अबाउट स्टेट इज नॉट, हियर स्टेट मींस कंट्री इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, यानी कंट्री से जो भी स्टेट हमारे वो बाहर नहीं आ सकते। ओके, देन यू सी they do not have a right to secede from India. They do not have a right to secede from India. Who are they? They किसकी बात कर रहे हैं? They is the state of our 28 state of our country. यानी 28 states जो हमारे कंट्री का पार्ट बने हैं, यूनियन ऑफ स्टेट बने, they have no right to secede from India. Yes, they have no right to secede from India. So in true federations, the constituting units or states have the freedom to come out from the union. यानी अमेरिका में you have 50 states, and this 50 state has come together to form a union, but they can go away from union, but the process is very rigid. 3/4 majority चाहिए उनको, which is tough. आ तो गए हो, जा भी सकते हो, but very tough. But provision है जाने का, but that is why India is not a true federation. क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट का जो इंटीग्रेशन हुआ था दैट इज ऑफ डिफरेंट कनोटेशन, डिफरेंट सर्कमस्टेंस, बट व्हेन यू कंपेयर टू अमेरिका दे हैव डिफरेंट सर्कमस्टेंस. सो दिस इज ओनली द रीजन दैट वी से इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन. और इंडिया में स्टेट हैज नो राइट टू secede, whereas in the true federations they do have a right, but the process is very rigid. Now, it combines the feature of federal government and the feature of unitary government, which can also be called as non-federal feature. Because of this, India is regarded as semi-federal state. देखिए तो कितना बड़ा बात कह दिया गया. कहा जा रहा है कि it combines the feature of federal government, यानी जो गवर्नमेंट फेडरल है, यानी ट्रू फेडरेशन नहीं, मगर फेडरेशन के जो कॉन्सेप्ट है, फेडरेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये देखिए दीज ऑल आर दी फेडरल फीचर. तो हमारे पास फीचर है बट वी आर नॉट ट्रू फेडरल. सो एनी टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है
Do you think India is a true federal as like America? Justify this statement. Justify this statement. अब देखिए, जब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा तो यू हैव टू गिव द रीजन फॉर इट. और इंडिया is a combination of federal government, whereas the features of unitary government also exist. यानी यूनिटरी का मतलब कई कई जगहों पे आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल अथॉरिटी. जी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल अथॉरिटी, लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी. Under Article 352, national emergency, under Article 356, state emergency, and under Article 360. That is what we say president rule. यानी स्टेट में हमको प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं, ये सेंटर ही डिसाइड करेगा. स्टेट कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता. ओके, सो इन दिस रिगार्ड अगर आप इस रिगार्ड से देखें तो इंडिया इज, यस, इंडिया डज हैव नॉन फेडरल फीचर आल्सो. इंडिया हैज नॉन फेडरल फीचर आल्सो, और उसको हम लोग कहते हैं सेमी फेडरल. मैन दैट मींस inclinations, that is the existence of federal feature as well as unitary feature. That is why we say that is the existence of unity as well as, so that is why India is called quasi federal state. India is called as a quasi federal state, yani that is equivalent to semi federal state. India is called a semi federal state. Now you see Professor Casey Ware, western scholar. ये सब भारतीय नहीं, वेस्टर्न. Western scholar has described it as, that is Professor Casey Ware has described India as a quasi-federal. Yani India has both unitary feature and federal feature, federal and unitary feature running side by side. But हमारा Supreme Court of India describe it as federal structure along with strong bias towards the center. सुप्रीम कोर्ट का ये डेफिनेशन है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है कि इंडिया डू हैव फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया डू हैव फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स सेंटर. यानी सेंटर के तरफ इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा है. नाउ वी कम टू टेरिटरी ऑफ इंडिया. अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, just now I have explained you that what is Article 1 and why do, in this regard, why can't we say India is not a federal state. और ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में हम लोग बताया, और आर्टिकल 1 में ही जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो इंडिया नेम ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज है, पर इनफैक्ट हम टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं इसमें. So here we'll try to discuss about what do you mean by territory of India. देखिए दो चीज है, one is Union of India and the second one is territory of state. इन दोनों में से किसका डायमेंशन ज्यादा होगा, कौन वाइडर है और कौन
इन दोनों में से विच वन इज वाइडर एंड विच वन इज नैरो? एंड विच वन इज नैरो? यस, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ सोचें कि कौन सा यूनियन ऑफ इंडिया वाइडर कॉन्सेप्ट है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर कॉन्सेप्ट है। यस, यू थिंक अबाउट इट। ये आप लोग अपने में सोचें। यू जस्ट टेक टाइम एंड डिसाइड कि क्या हो सकता है। तो आप देखिए, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली 28 स्टेट्स। Only 28 states which shares federal features to India. That is with the union government. Only 28 states. But जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, it includes 28 states plus 8 union territories plus any other state. In future, India acquire or Indian government acquire. Okay, Indian government acquire. That means territory of India is much wider when we compare to Union of India. So Union of India is considered as a narrow sense and territory of India is wider. Is it clear? ये समझ में आ गया? Now see, the expression, this is what is being explained here. The expression Union of India should be distinguished from the expression territory of India. While Union includes only 28 states, you see, which enjoys status of being member of the federal system and shares a distribution of powers with the union and territory of India. यानी ये जो है ये शेयर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया में यू सी दी स्टेट्स are sharing, as I have said, there is union list and state list. ये स्टेट जो है ये इसी लिस्ट को शेयर कर रही है यूनियन के साथ. That is why it is a federal characteristics. So this is only the reason that we say 28 states enjoy the status of being member of federal system and share distribution of power. Just now I said na, कि we don't have separation of power, we have distribution of power with the union, that is territory of India. And when we say about territory of India, so you see territory of India includes, territory of India in this regard includes 28 states plus 8 union territories and any other. Foreign और any other states, जिसको हम एक्वायर करेंगे, जो ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं आप लोग. ओके, इतना ज्यादा काम हो गया ना, इसको मिटाना पड़ेगा.
Now see, so today I'll be stopping my class here only, that is territory of India, because we don't have so much time to continue further. From tomorrow again I'll be explaining from union territories. I'll be explaining more detail further from tomorrow. If you have any doubt, you please write in a comment box. I will be giving reply to you. Okay. Thank you for the class.